Today topic is starting and induction motor. For starting and induction motor, there will be a problem of heavy current. Through this heavy current, this motor can be burn out its winding. We use three methods for starting and induction motor. The first one is direct online starter, second is star delta starter, and the third type is auto transformer starter. Why we are using these types of starters? Because the main reason for using these starters is the first one is to reduce high starting current, and the second reason is for overload and protection to this motor. इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास पहला तरीका जो है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सेकंड टाइप जो है ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तीसरी टाइप जो है हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो ये तीनों मेथड इस्तेमाल करने का हमारे पास वजह क्या है? उसमें पहली है, जब भी हम किसी भी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वो अपनी रेटिंग का 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा करंट लेती है। तो इस वजह से उस मोटर की वाइंडिंग जल सकती है या मोटर खराब हो सकती है। The next part is star delta connection. In star connection, the first coil terminal is A1 and the second terminal is A2. Second coil terminal B1, B2, third coil terminal C1, C2. When we will combine these all points A2 with B2 and C2, these will be all common points and it will create a star connection. In delta connection, three coils A1, A2 terminal, first coil, second coil B1, B2 and third coil C1, C2 terminals. When we will connect A2 terminal with C1, B1 terminal with C2, B2 terminal with A1, then it will create a delta connection. If we will see this all connection in this diagram, we can easily see that we have provided three-phase supply at terminals A1, B1, C1. Three-phase supply, when we will connected these 3 points, this supply will come from this coil at this point, A1 connected with A1, B1 connected with B1 and C1 terminal connected with C1 point. These coils are getting supplied directly from three-phase supply, and the second terminal will be connected in star. We have already seen that these points are common in star connection. When we will see at this point, these 3 points are common at a single point. When we will connect this point with this point, this will create a star connection. So we can easily see that 3 coils A2 terminal with connected through this point, B2 terminal with connected at this point, and the C2 terminal with connected at this point. These three all points are common at a single point. In this diagram हम देख रहे हैं स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में हमारे पास तीनों पॉइंट्स A2, B2, C2, ये तीन कॉइल हैं हमारे पास, जिनके टर्मिनल्स A1, A2 फर्स्ट कॉइल के, सेकंड कॉइल के B1, B2 टर्मिनल और तीसरी कॉइल के टर्मिनल C1, C2। जब हम इन तीनों टर्मिनल्स को कंबाइन करेंगे, कॉमन करेंगे, मिलाएंगे A2, B2 और C2, तो ये हमारे पास स्टार कनेक्शन बन जाएगा। और डेल्टा कनेक्शन में हमारे पास क्या है? 3 कॉइल्स हैं जिनके टर्मिनल A1, A2, दूसरी कॉइल के टर्मिनल B1, B2 और तीसरी कॉइल के टर्मिनल C1, C2। जब हम एक पहली कॉइल के A2 टर्मिनल को तीसरी कॉइल के C1 टर्मिनल से मिलाएंगे और पहली कॉइल के A टर्मिनल को दूसरी कॉइल के B2 टर्मिनल से मिलाएंगे और तीसरी कॉइल के C2 टर्मिनल को B1 टर्मिनल से मिलाएंगे, तो ये हमारे पास एक डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा। तो इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, हमने 3 फेज सप्लाई इस्तेमाल की है। A1, B1, C1 तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास। रेड, ब्लू और ब्लैक हम 3 फेजेस के लिए 3 वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे हम ये सप्लाई डायरेक्ट इन कॉइल्स को जाएगी, A1 टर्मिनल जो है हमने पहली कॉइल के A1 टर्मिनल के साथ
कनेक्ट करती है। इसी तरह सप्लाई का जो B1 टर्मिनल है इसको हमने डायरेक्टली इस रास्ते के थ्रू दूसरी कॉइल के B1 टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, और सप्लाई का जो तीसरा टर्मिनल है C1 इसको हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है C1 पॉइंट के साथ कॉइल के। तो यहाँ पे जैसे ही हम इस पॉइंट को एक हमने यहाँ पे डबल पोल डबल थ्रो स्विच इस्तेमाल किया है, जैसे ही हमने इसको ऑन किया है, ऑन करने की वजह से ये क्या है, ये टर्मिनल इस रेड टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो गया है, C2 टर्मिनल इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो गया है, और A2 टर्मिनल इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो गया है। तो जैसे ये कनेक्टेड होंगे तो ये एक स्टार कनेक्शन क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A2 B2 C2 तीनों टर्मिनल्स कॉमन है, एक जैसे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं B2 C2 और A2 तीनों एक ही कंबाइन किए हुए, हमने एक ही पॉइंट पे इन सब कनेक्शंस को मिलाया हुआ है। तो यहाँ से ये एक स्टार कनेक्शन क्रिएट करेंगे। सप्लाई हमारे पास इस कॉइल पे आएगी A1 टर्मिनल से, B1 टर्मिनल से इस कॉइल पे आएगी, C1 टर्मिनल से हमारे पास सप्लाई इस पॉइंट पे आएगी। तो पहली इनका रूट देख लेते हैं। तो यहाँ से सप्लाई आएगी इस कॉइल में से होती हुई इस पॉइंट में से गुजरती हुई C2 पॉइंट तक पहुंचेगी, और इसमें से गुजर के यहाँ पे पहुंच जाएगी हमारे पास। इसी तरह B1 का देखते हैं, यहाँ से सप्लाई आएगी, इसमें से गुजरती हुई इस कॉइल में से गुजरती हुई वापस इस रूट पे आएगी, यहाँ से गुजरते हुए B2 पॉइंट पे आएगी, B2 पॉइंट से फिर इस कॉमन पॉइंट में हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास तीसरा पॉइंट है C1 यहाँ से सप्लाई आएगी इस पॉइंट पे, इस कॉइल में से गुजरती हुई यहाँ पे आते हुए A2 पॉइंट पे हमारे पास पहुंच जाएगी, और इस पॉइंट से गुजरती हुई यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास सप्लाई। तो ये क्या है हमारे पास, इसने यहाँ पे सब पॉइंट्स ने मिलके एक स्टार कनेक्शन यहाँ पे हमारे पास बनाया है। In the second part, star delta starter, we have connected motor at run position in delta connection. You can easily see that A2 point is connected with C2 point. When we will see this A2 point, it is connected directly through the winding of motor coil is connected directly with C2. And the second point, B2 point is connected with A1 point. P2 connected point, it will come from this, pass will through the coil of three-phase induction motor, and it will come at the A1 point. And the third point, C1 point, it is connected with B1. You can see that C1 point is directly connected with motor. It will pass through the motor coil and directly connected with the B1 point. तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पहले हम मोटर को स्टार्ट करते हैं स्टार कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन क्या है, मोटर को ज्यादा करंट फराहम करता है और प्रोटेक्शन भी साथ फराहम करता है। जैसे ही मोटर अपनी 70 to 80% पोजीशन पे आ जाती है तो मोटर क्या है, डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट हो जाती है और अपनी फुल स्पीड पे चलना शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मोटर में यहाँ पे ये डेल्टा कनेक्शन है हमारे पास दिखाया गया है। डेल्टा कनेक्शन में A2 पॉइंट जो है ये C2 पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखें A2 पॉइंट ये कनेक्टेड होता हुआ यहाँ से गुजरता हुआ मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो लगी हुई है इसके कॉइल में से करंट गुजरती हुई यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट C2 के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट में देखें B2 पॉइंट जो है ये A1 के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B2 जो पॉइंट है यहाँ से करंट आती हुई यहाँ से गुजरती हुई थ्री फेज इंडक्शन मोटर की कॉइल में से गुजरती हुई यहाँ पे आएगी और डायरेक्टली A1 के साथ कनेक्ट हो जाएगी। इसी तरह जो तीसरी कॉइल है हमारे पास, इसका C1 टर्मिनल हमारे पास B1 के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C1 टर्मिनल से करंट आएगी, यहाँ से गुजरती हुई थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर लगी हुई होगी इसकी कॉइल में से गुजरती हुई यहाँ पे आएगी और यहाँ पे हमारे पास B1 पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं, इस डायग्राम को आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं कि थ्री फेज मोटर डेल्टा कनेक्शन में कैसे कनेक्ट होगी। और जैसे ही अपनी 70 to 80% पोजीशन पे पहुंचती है स्टार कनेक्शन में कनेक्ट होने के बाद, तो ये ऑटोमेटिकली डेल्टा में ही कन्वर्ट हो जाती है।